اچھا اختر بیگم، اس دفعہ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پیو، دیکھو کیسی بنائی ہے۔ ابھی امیر حسین کہاں ہیں؟ ابھی کہاں ہے نہیں جانتا، مگر ضروری ہے کہ اس کو چھاونی واپس لے جایا جائے۔ اس کو اذیت تو نہیں دیں گے نا؟ نہیں نہیں، کیسی اذیت، بس صرف یہ ممکن ہے کہ اس کی ڈیوٹی بڑھا دی جائے۔ اس لیے بتا رہے ہیں نا کہ مجھے سکون ہو جائے۔ نہیں میری اچھی بیگم، تم چائے پیو، اپنی ٹھنڈی ہو جائے گی ورنہ۔ ایک فون خلت کو بھی کر دیں۔ نہیں، میں تو آپ سے پہلے ہی غصہ کر کے اس گھر سے باہر آ گئی تھی، ابھی یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ ماشید اب واپس تو نہیں آئے گی، میں ویسے ہی ایک کے لیے پریشان ہوں۔ میں فون کروں؟ نہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں چاہتا تم خود کو اس کے آگے چھوٹا کرو۔ میرا چھوٹا ہونا کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ میں اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آخر امیر حسین نے کیا کیا ہے؟ خدا نہ کرے اس کو کوئی سزا ملے، صرف 2 دن بعد وہ اسے چھوڑ دیں گے۔ دانش، اپنی بہن کے بیٹے کا بھول گئے ہو کیا؟ محمود بد نصیب، آپ نے دیکھا تھا نا اس پہ کیسی مصیبت آئی تھی۔ اس میں اور محمود میں فرق ہے، محمود پہلے سیاست میں تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بیٹے کو ایک رات سخت سزا دینے کے لیے لے کر گئے تھے، صبح تک اسے مارتے رہے۔ مجھے تو ایسا کچھ نہیں بتایا، ایسا نہ ہو کہ آسانی سے وہ… نہیں، معروف نے بتایا تھا، پھر غلط جا کر اسے باہر لے کر آیا تھا۔ کس لیے پکڑا گیا تھا اسے؟ اسی سیاست کی وجہ سے۔ پھر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب بتا دیا نا۔ ایک فون کریں؟ نہیں، خالد ان باتوں کے لیے چھوڑا ہے، مجھے اس مسئلے کے لیے اس کے بڑوں سے بات کرنی ہوگی۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ کس سے؟ معروف زیادہ دیر مت کرنا۔ میں جا رہی ہوں، کوئی کام تو نہیں؟ جاؤ، فی الحال تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ نہیں وہ کھیرے مت رکھو، تازہ کھیرے لائی ہوں، فریج میں رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سنو، دہی اور کھیرے رکھ دیے ہیں، کولڈ ڈرنک بڑے والے فریج میں رکھی ہوئی ہے تاکہ سب کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہو جائے۔ میرے خیال سے برف بھی کافی موجود ہے، اور لوبیا کا چٹپٹا مزیدار سوپ بھی ہے جو تمہیں بہت پسند ہے۔ اور دیکھو پتیلی میں رکھا ہے تاکہ گرم رہے، پینے کی زحمت کر لینا۔ تم نے کتنی ساری چیزیں بنا دی، وہ آئیں گے اتنی ساری کھانے کی چیزیں دیکھ کر صبح تک نہیں جائیں گے۔ نہیں، جب بھی تم لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہو تو رات 9 بجے گھر آ جاتے ہو اور پھر کھانا گھر والوں کے ساتھ مل کر کھاتے ہو۔ معروف یہ لیلا ہے؟ ہاں آ جاؤ۔ ہاں، آ رہی ہوں۔ یقین کرو گی آج رات ان کا کچھ معلوم نہیں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں جاؤں تو میں رک جاتی ہوں۔ نہیں معروف جان، تم جاؤ، وہاں تم کو دعوت دی ہے۔ آج رات تم اچھی لگ رہی ہو۔ میں تیار ہوں بالکل۔ ہم بھی تیار ہیں۔ تم اس حالت میں چلو گی؟ اچھا تو لگ رہا ہے۔ نہیں، کچھ اور پہن لو۔ کیوں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تم خود ہی دیکھ لو، ویسے تو تم بہت اچھے کپڑے پہنتی ہو لیکن یہ کالا سوٹ تم پہ کچھ جچ نہیں رہا۔ صرف میرے اوپر اچھا لگتا ہے۔ کہاں؟ تم کو کیا مطلب؟ چھوڑو، خود ہی فون اٹھائے گا، کیا تم اس کی سیکریٹری ہو؟ جی وعلیکم السلام، کیسی ہے طبیعت؟ سوچا نہیں تھا کہ اتنی جلدی ڈھونڈ لیں گے۔ جیل میں ہے؟
चलो देर हो रही है। उसकी खिदमत में कितना इजाफा किया है। अब जो आपकी समझ में आए। नहीं नहीं नहीं, पासिंग के लिए तेहरान नहीं भेजना उसको, वहीं छोड़ दो, मर्द बन जाएगा ये लड़का। चलो। चलो, हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। परवाना भी बुलबुल से कम नहीं होता, जला देता है खुद को एक शमा के लिए। हेलो अमीर हुसैन, कहाँ हो? हाँ मैं जानती हूँ। सुनो, तुमने अपने घर पर फोन किया, अख्तरबाजी बहुत। हाँ ठीक है, तुम्हारे सामने कोई है? बस जो सवाल पूछूं हाँ और ना में जवाब देना। मैं उस सबूत के बारे में परेशान हूँ जो तुम्हारे पास है। शायद तुम पर मुसीबत आ जाए। बेवकूफ। तुम भी अपना ख्याल रखना। खेल शुरू करो भाई। ये अमरीकी आखिरकार नहीं आया, हम अपना खेल तो शुरू करते हैं। आप अपना खेल शुरू करें, वो नहीं आएगा, यानी मैंने उसको नहीं बुलाया। क्यों? वो चाहता था कि मुझसे अदालत के हवाले से बात करे, वैसे भी बहुत खराब और गलत किया है। छोड़ो, अजीब आदमी है ये। क्या मतलब? जनाब कहीं उसके मुखालिफ तो नहीं हो गए हो? जंदकी, जन्नत की जान, उस लड़की गजाला के साथ कोई मुलाकात रखी? मुलाकात तो रखो। कैसी मुलाकात? इंजीनियर, 1 मिनट के लिए आओ, तुमसे काम है। आओ बैठो। ये बताओ कि बंदर अब्बास से स्क्रैप की बात कर ली है? अगर नहीं की है तो मैं तुम्हें 500 देता हूं। अगर मैं तुम्हें कल सुबह भेज दूं तो तुम कागजात लेके आ जाना। मैं नहीं हूं। नहीं हो? ये क्या कह रहा है शफी? हकीकत यह है कि जो कुछ भी है आज रात ही पेश कर दूं, आगे अल्लाह ही मालिक। हाँ तुम ले लो, फिर मुझे दे देना। सब है, सारे तामीराती काम और सामान हमारे लिए, जो बचा है वो शफीजादे के सुपुर्द। और उसके पीछे का हिस्सा मेरे लिए छोड़ देना। परेशान मत हो डॉक्टर अजीज, तुम्हारा हिस्सा महफूज है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, वो एकदम इटालियन है, बिल्कुल हमारी तरह। मुकम्मल है। तुम लोग आज रात आए हो कि कुछ मजा कर लो या पैसे कमाने का सोचने आए हो? पैसा कमाएंगे तो अच्छी गुजरेगी। तुम्हें आज ही क्या हो गया है? तुम बिल्कुल हमारा साथ नहीं दे रहे। तुम लोग अपने हाल में खुश रहो। तुमको क्या मतलब मैं जो भी करूं? एक बार कह दो तो फिर खड़े हो जाएं हम लोग। सुनो मेरी जान, इस खेल को छोड़ दो, कोई और खेल खेलो, कोई गाना वाना गाओ। देख नहीं रहे इसकी क्या हालत हो गई है? एक शर्त की तो कुछ शराइत ही होती हैं। सब तुम्हारे साथ हैं। कुर्बान जाऊं समझदार लोगों पर। फिर कहाँ होगा वो, पता नहीं कहाँ होगा वो, कहाँ होगा वो, पता नहीं कहाँ होगा वो। आज ना वो रात है जो मेरे दोस्त का चाहिए, कहाँ होगा वो, पता नहीं कहाँ होगा वो, पता नहीं कहाँ होगा वो। अगर वो सो रहा है तो तुम जाओ उसे उठा दो, कहाँ होगा वो, पता नहीं कहाँ होगा वो, पता नहीं कहाँ।
کھڑے ہو، تمہاری باری ہے. کتنے مہینوں سے خدمت کر رہے ہو؟ 3 ماہ سے جناب. جانتے ہو کتنے مہینے کی ٹریننگ ہے؟ 24 مہینے. 1 رات سزا میں رہے خدمت سے فرار کی صورت میں. اب یہ بھی. کتنا پڑھے ہو؟ انجینئر ہوں جناب. پھر تو تمہاری ریاضی بہت اچھی ہوگی جناب انجینئر. اگر تمہارا ارادہ ہو کہ ہر 3 مہینے بعد جوش میں آ کر خدمت سے فرار کرو تو 24 مہینوں میں کتنی دفعہ ہوں گے؟ جناب بات جوش صرف کی. سوالات کے جوابات دو. کتنی دفعہ؟ 16 دفعہ. پھر بس تمہاری خدمت ڈاکٹریٹ تک اضافہ ہو چکا ہے. تم اب اس اضافے پر جوش دیکھو گے تو اس طرح تمہارے سر کے بال سفید ہوں گے اور یہ وردی تمہارے جسم پر ہوگی. ٹھیک ہے؟ جی. کیوں بچے کی طرح تم اپنے سر کو نیچے کر کے خدمت نہیں کر رہے؟ یہ عدالت ہے جناب. یہ فوجی قانون کی عدالت ہے. یعنی بات کرنے کا حق نہیں ہے. 0 ہے. کوئی فائدہ نہیں. کیا؟ سالار ہم کو کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں ہو، 0 ہو. تمہارا فلسفہ ہم کو نہیں سننا. صرف سوالات کے جواب دو. سب بات ہی کرتے ہیں، کوئی کسی کی نہیں سنتا. ٹھیک. لگتا ہے تم کو سزا سنا دی جائے. یہاں چھاؤنی میں کسی ایک شخص نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کس موت کے عالم میں ہوں. اگر باہر وہ ہے تو پھر 24 مہینے تک اسی طرح جیل میں ڈال دیں مجھے. یہاں تمہاری فائل میں لکھا ہے کہ 1 ہفتے کی چھٹی ٹریننگ سے لی تھی. بس نہیں لی تھی. میری بہن مر گئی تھی. سب کو جانا ہے. کون زندہ رہے گا؟ جنازے سوئم 7ویں میں تم تھے. شاید چیلوں میں بھی چھٹی دے دیتے تم کو. ہاں مجھے جانا تھا. دلیل دی، بات کی، گزارش کی، لیکن کسی نے نہیں ہماری دلیل یہ ہے. تھی یا نہیں تھی؟ چھٹی لی تھی کہ جاؤ اور ملک کے خلاف اور فوج کے خلاف اقدام کرو؟ نہیں جناب. پھر یہ کیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ تہران ان کاغذوں سے بھرا پڑا ہے. اس طرح بات کر رہے ہو جیسے تم اس ملک میں نہیں ہو، دارالخلافہ سے بے خبر. آپ کے خود کے گھر میں ایسے بہت سے کاغذ ہوں گے. برف ہٹانے کے بیلچے کے پیچھے لگاتے ہیں لوگ، اپنے کپڑے رکھتے ہیں. ایک آدمی وطن پرست، شاہ کا دوست جب ان ذلت آمیز کاغذوں کو دیکھے گا تو کیا اس کا رد عمل ہوگا؟ آخر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ ان میں کیا کھول ہے؟ کے نہیں دیکھا، پڑھا تو دور کیوں نہیں پھینکا؟ مجھے کیا پتا تھا؟ مجھ سے 1-2 نہ کرو. ٹھیک ہے؟ 6 مہینے خدمت میں اضافہ اور 5 مہینے زندان. صرف چند دن غائب ہونے کی وجہ سے؟ اگر توہین عدالت کرو گے تو، بغیر اجازت بات کرو گے تو جان لو اس سے بھی زیادہ سخت سزا مل سکتی ہے. جیل اس لیے جا رہے ہو کیونکہ یہ کاغذات تمہارے پاس ہیں اور خدمت سے فرار کی صورت میں. جاؤ خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری فائل بادشاہی لوگوں کو نہیں بھیج رہا. تم سزا کے دوران یہیں پر رہو گے. اور ہاں، سزا کے بعد چھاؤنی کا کمانڈر تمہاری پاسنگ آؤٹ کرے گا. سپاہی لے جاؤ اسے زندان میں. جی جناب. بھولے تو نہیں؟ پہلی والی سب باتیں یاد ہے نا؟ چلو. پھر دیوانہ پنجرے سے نہ اڑ سکا. ارے آپ یہاں؟ آزاد نہ ہوئے. ارے نہیں آپ کھڑے مت ہو. پریشان تھا، سوچ رہا تھا کہ واپس نہیں آؤ گے. جناب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ او آخر میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ جو بھی دوست تک پہنچے نہیں کی ہے. پھر بھی میں شرمندہ ہوں. میں نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ میری وجہ سے آپ مصیبت میں آئے. مجھے بالکل اچھا نہیں لگا. جو بھی یہ خبر سنتا اس کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں. اچھا کیا ہوا جو واپس آ گئے؟ مجھے یہ واپس لائے ہیں. کسی مقام پر پہنچے؟ ہاں ایک ملزم ابھی مل تو گیا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کا کچھ کر پائیں گے. کیوں؟ وہ ایک امریکی ہے اور اس کے پیچھے امریکی ایجنسی ہے. آگے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اوہ کسی عدالتی حاضری پر نہیں آتا، بالکل بھی فکر نہیں ہے.
ये गिरफ्तारी का हुक्म देते हैं, मामले को टाल रहे हैं ताकि कम से कम पूछगछ ना हो, और इस अरसे में हमें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। कोई ताज्जुब की बात नहीं, यहाँ वो साहब खाना है और हम मेहमान। लेकिन आप कैसे पकड़े गए? सालार का किया धरा है। अरे ये सालार। उसने अपना काम खुद किया है। इस सिस्टम में सारा रुका काम ठीक है, ना कि मेरा काम। काश मेरे बस में होता कि मैं आपकी मदद कर सकता। अच्छी आरजू नहीं है। यहाँ कब लाया आपको? कैद अहम नहीं है, उसकी ताबीर बुरी है। आपका तबादला हुआ? कहाँ, कुछ मालूम है? ज़ैदान या ईरान शहर या कहीं और? कौम? आप मजाक कर रहे हैं जनाब? मजाक नहीं कर रहा जवान। अच्छा, कुम तो यहाँ से बहुत बेहतर है। ऐसा लगता है जैसे काफिले से बहुत दूर हो। किस तरह? इसको पढ़ा? ईरान और इस्तेमार सुर्ख और सियाह। किस बारे में है? 2 दिन में ये छापा है। कुम में कयामत है, उसकी आवाज भी बाहर नहीं आ रही। आपको कैसे मालूम हुआ? बस ऐसे ही मेरे लोगों ने बताया है। इस तरह क्यों देख रहे हो? जनाब ब्रिगेडियर, मैं अब तक आपको नहीं समझ सका। आखिर आप बादशाह हैं या इनकलाबी? खाला चलो, देर हो रही है, जहाज उतर गया होगा। अरे जहाज जरूर ताखीर से आएगा, इत्मीनान रखो मारूख। उफ, तुम कितने संग दिल हो। मारूख, ये मेरी नई टाई देखी? अरे वहाँ तुम्हारी बेटी इंतजार कर रही है और फिर कहते हैं कि और देर कर। गलत हैं जो कहते हैं। मैं सीरियस हूँ, चलो जल्दी से जल्दी आओ। वो तो मैं खुद जानता हूँ, मेरी आस्तीन छोड़ो। छोड़ो, मैं ले आऊँ। अच्छा रुको, मैं ले आती हूँ। मैं खुद ले आऊंगा। जाओ, देर हो रही तुमने है। वाकई शोहर समझा है जो चाबी ला रही हो। अरे फूल भी लेने हैं, देर हो जाएगी। हाँ मैं जानता हूँ। हाँ ये लो, ये पहन सुनो, लो। हीटर बंद कर दिया? हमेशा खुला छोड़ देती हो तुम। अरे आप तैयार नहीं हुए? किस लिए? क्या नहीं जाना चाहिए एयरपोर्ट? नहीं। अगर आप ड्राइविंग नहीं कर सकते तो मैं फोन करके एक टैक्सी मंगवा लूं? मुश्किल है ड्राइविंग मेरे लिए, मैं एयरपोर्ट नहीं जाऊंगा। हमारी नवासी आ रही है, आप देखना नहीं चाहते? यहाँ आएगी तो मिल लूंगा। कैसा दिल है आपका? पत्थर है। हाँ वाकई। इस तस्वीर को जरा देखो, कितनी प्यारी लग रही है। कुर्बान जाऊं। वो एक बहुत अच्छा एहसास था। कितना खूबसूरत लिबास है। देखो देखो। अभी तो नहीं देख सकता। तुम बहुत खुश हो, चाहती हो लड़की घर ना पहुंच सके। हाँ अच्छा है, मगर अभी सामने देखना चाहिए। मैं बहुत चाहती थी कि आप लोग भी मेरे फंक्शन में होते। हाँ बेटा, हम उस वक्त तुम्हारे पास नहीं आ सकते थे। उस वक्त तुम्हारी खाला महशीद का इंतकाल हुआ था। अख्तर नानी कैसी हैं? वो भी अब इस बात को भूल रही है बेटी जान। तुम भी बहुत एहतियात करना, हाँ, कि तुम्हारे आने से आजादारी का एक नया सिलसिला शुरू ना हो जाए। तुम जानती हो सब उसको बहुत पसंद करते हैं। बहुत औरतें बहुत कुछ पूछेंगी, सिर्फ अपने बारे में बात करना और कुछ नहीं। मसलन तुम्हारे अब्बू जानना चाहेंगे कि किस फील्ड का इंतखाब करोगी, कौन सी यूनिवर्सिटी जाती हो, कौन से शहर में हो, कितने साल पढ़ोगी। वाओ, अब्बू अगर जान ले कि आने से पहले मैंने कौन सी फिल्म देखी। 2 बातें बिल्कुल ना करो। फिलहाल मैं ये कहूंगा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे खलत, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आइए। आप इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? हाई कोर्ट के लिए। उसके बाद वहाँ क्या करेंगे? केस खत्म। मैं नहीं, आप खत्म करेंगे। मैंने यही कहा जनाब। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। सलामत रहिए। माफी चाहती हूँ जनाब, जंदकी देर हो गई। आइए।
जवानी जवानी जवानी, कहाँ हो जो तुमको याद दिलाऊं। लेकिन आप तो बूढ़े नहीं हुए हैं जनाब जिंदगी। अलबत्ता हमारी तरह शौक ज़ोक नहीं है, मगर इस कदर नहीं कि अखबारों के फ्रंट सफ़े की रौनक बनूं। अलबत्ता हम सबका उस रोजनामे पर हक है, क्या बूढ़ा क्या जवान क्या नहीं। मेहरबानी करके आप बैठ जाएं। नहीं, ठीक हूँ, पुरसुकून हूँ। तुमको देखता हूँ तो मुझे अपनी जवानी याद आ जाती है। नया नया वकील भी तो बनना था, सर और पांव भी नहीं जानता था, खुद को एक मुश्किल मुसीबत में डाल दिया। तुम्हारे इश्क की तरह जैसे रात दिन तुम केसेस पर काम करती हो, मैं भी था। ताकतवर, जुर्रत। तुम कामयाब हुई मोहतरमा, उसका वजूद भी है, उसकी तबीयत का भी। अलबत्ता हम में से बाज बेजर्फ नहीं। अगर ऐसे केसेस कर दें तो खुदा जानता है, और अगर एक फाइल खोल दें तो वावेला हो जाता है। बहुत सारे हैं जो नहीं जानते वकालत ऐन सियासत है। सियासत का दौर दूर और तंग है। सब्र बर्दाश्त का सियासत में कोई काम नहीं है। कुदरत यह है कि यकीन करें किसी का हक कितना है। अगर हुनर से मजाकरात करोगी, हरीफ से ज्यादा इम्तियाज हासिल होगा, जिसका ये मतलब नहीं कि इम्तियाज ही ना दो। हाँ, इम्तियाज लो और इम्तियाज दो। शुक्रिया, अच्छा दर्ज दिया है। ये दर्स नहीं है, ये दर्स नहीं है, ये उस आदमी का हासिल तजुर्बा है जिसने इस काम में अपनी हड्डियां गला दी हैं। इसी तजुर्बे की खातिर जिसको दोस्त पसंद करते हैं, एतमाद करते हैं और बंदे को आगे बेचते हैं। इसलिए कि इम्तियाज लेने और देने के लिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं मजीद और शर्मिंदा हूँ, हम अपने असल मकसद पर आते हैं। तुम ऐसे केस को लेकर बैठी हो जिसकी कोई भी वजह नहीं है। ये जो नुर्स की शिकायत और FIR है, ये उसके लिए ठीक बात नहीं है, और ना हमारे पास कोई मोहकम दलील है और ना ठीक और अच्छा गवाह। एक और आधा गवाह भी, और कानूनी मेडिकल की वजह से वो अपनी आंखों से तायद नहीं कर सकता। तुम लड़ाई के लिए खड़ी नहीं हो सकती। नहीं जानता कि तुमको इत्ला है या नहीं कि जनाब नुर्स और मोहतरमा आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे, आपस में एक दूसरे को खत लिखते थे, कसम और वादे कर रखे थे। हत्ता कि जनाब नुर्स के कहने पर मैशिद ने डॉक्टर का इम्तिहान दिया था ताकि पेरिस के बजाय अमेरिका चली जाए। आप समझ गई ना? जी। उसूलन इसी तरह के अवामिल से किसी की जुर्रत और रद्द अमल खत्म नहीं होता। अलबत्ता अदालत का मकसद भी यही है कि हकीकत को जान सकें। अहम तरीन जो हकीकत है, एक जवान खूबसूरत एक वकील का मुस्तकबिल है। अगर अपने वक्त से फायदा उठाए तो 100 साल का सफर एक रात में तय करेगा। और अभी वो एक ही वक्त में फंस गया है। मैं क्या कह सकता हूँ? तुम्हारी क्या पेशकश है? हमारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। मैं भी इसी बारे में आपसे अर्ज कर रही हूँ। बड़े लोगों के खेल में शामिल होने का हमारे पास अच्छा मौका है। अभी अगर एक अमरीकी कौमियत वाले को निजात दी तो सिफारत को खुद अपने लिए गर्विदा कर लिया। बस अगर इसको अपने साथ काम करने वाले हकीर वकील को एक वकालत का मौका दे दो जो कीमत का यकीन कर ले। जहाँ तक आपका जाती इरादा नहीं होगा, मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगी। फिर कुछ वक्त दें ताकि मैं अपने मौकिल से जाकर इस बारे में बात कर लूं। जरूर, हफ्ते के आखिर में, ठीक है? बहुत जबरदस्त। जानता था कि तुम समझदार लड़की हो। बाद में जरूर साथ काम करने के ज्यादा मौके मिलेंगे। कुछ ऐसा करूंगा कि जिससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। खुदा हाफिज।
अरे मेरा दिल, अरे मेरी जान, कुर्बान जाऊं माशाल्लाह। मेरा दिल भी आपके लिए बहुत परेशान था। अरे कुर्बान जाऊं तुम पे, मुझे जरा देखने तो दो। माशाल्लाह देखो जरा कितनी बड़ी हो गई है ये। यानी 2 साल में इंसान इतना बदल जाता अभी है। तो आपने मेरे क्लास फेलोज को नहीं देखा। कहीं ऐसा ना हो कोई मेरी बच्ची पर नजर लगा दे। क्यों नहीं? माशाल्लाह बड़ी हो गई हो मेरी बच्ची। चाहती हूँ तुम अपना ख्याल रखो। क्यों नहीं, बिल्कुल भूल गई थी। हाँ, बाबा जान नजर नहीं आ रहे? ऑफिस में है, तुम्हें खुद जाके उनसे मिलना पड़ेगा। जरूर। इलाही कुर्बान जाऊं इस पर। सोचा नहीं था कि आप आएंगी। अम्मी खुदा का वास्ता आप खत्म कर दीजिए। आप अच्छी तरह जानती हैं कि उसकी गलती है ये। अमीर हुसैन ने तो ना ही मेरा एहतराम किया और ना ही खलत का किया। अगर बुजुर्गों का छोटों के सर पर हाथ ना हो तो कम से कम समझना चाहिए था कि हमारे घर में ऐसा ना करता। तुमने भी तो उसकी बेइज्जती की है ना। बड़ी बहन अगर चाहे तो अपने छोटे भाइयों को कुछ भी कह सकती है, उसका हक है। और छोटे भाइयों को चाहिए कि उसका एहतराम करें। अच्छा इंसान वो है जो पहले खुद को तकलीफ दे फिर दूसरों को। देखो मारूख, दरअसल तुमने खुद खलस से बात की कि माशीद के साथ क्या मामला था। हाँ, और ये भी पूछा कि तुम लोगों ने उस पर ये तोहमत लगाई है। मुझे तो बिल्कुल भी खबर नहीं थी अम्मी। काफी था कि एक ही बात करती। मैंने खुद से बातें की हैं उस दिन से जब आप और अमीर हुसैन और बाबा मुझसे लड़ाई करके चले गए, और अब तो चाहते भी नहीं हैं कि इसके बारे में बात करें। सोचा था कि शायद माजरत के लिए या फिर हो सकता है कि सुकून के लिए घर आओगी। मैंने कोई गुस्सा लड़ाई नहीं की थी अम्मी। आप चाहती हैं कि मैं आज ही रात आ जाऊं और अमीर हुसैन का चेहरा चूम लूं और सारी बातें भूल जाऊं। अब तो देर हो गई है। कैसी देर? उसको पकड़कर ले गए हैं। कौन? फौजी। मगर कहाँ ले गए उसे? वहीं छावनी में। कल फोन पर 2 बातें हुई थी। केस चला है, 5 महीने के लिए कैद किया है और 6 महीने खिदमत में इजाफा। नहीं, जेल में रहे लेकिन सलामत रहे, इसी वजह से मैं थोड़ा सुकून में हूँ। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तुम्हारे अब्बू को कहा कि ये गलत उन गैर मुसलमानों को पहचानता है, एक फोन उसे कर दें। तो कहा जरूरत नहीं। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि जो नक्शा हमें चाहिए वो तैयार हो जाए? जनाब तैयार है ये है? हाँ, खत के ऊपर खत बनाकर ये बताना चाहते हो ये बेकार नहीं थे? बाकी के नक्शे कहाँ हैं? दूसरे नक्शे में गलती थी, 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा। बेवकूफ आदमी, मैं 2-3 दिन उसकी बातें सुनूं जो उसके प्लान पर दस्तखत करेगा, बाद में कहूँ माफ कर दें प्रोजेक्ट का नक्शा तैयार नहीं था। इंशाल्लाह अगले हफ्ते। हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए जनाब, जब तक ये नक्शा तैयार नहीं हो जाता मैं सोऊंगा नहीं। सोना तो बिल्कुल भूल जाओ। हाँ जी, आ जाएं। जनाब आपके गेस्ट आ गए हैं, मैं बिठा दूं उनको? हाँ मैं आ रहा हूँ। ठीक है जनाब। तुम्हें जिसकी भी मदद चाहिए हो तुम ले सकते हो। मुझे नक्शा तैयार चाहिए, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। अगर नक्शा नहीं तैयार हुआ तो ये भूल जाना कि इस दफ्तर में काम भी करते हो। जाइए। इजाजत दीजिए। जो आपने कहा था वो ले आया हूँ, अब उसका क्या करें? तो मेरे सर पर क्यों सवार हो, नीचे लेकर जाओ ना। अच्छा, आ रहा हूँ मैं। ठीक है। हाय। मैं सोच रहा था कि तुम शहर में होगे। हाँ, इन समन के साथ। अदालती समन? कुछ भी। तुमको कहा था अहम नहीं है। अहम यह है कि मेरे आसाब ने काम करना छोड़ दिया है। तुम कोशिश करो कि तुम्हारे आसाब काम ना छोड़ें। मगर किस लिए? उस दफा ना जाते तो कुछ होता,
क्या तुमने ये नहीं कहा था कि इसे हल करूं? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मेरी तमाम मसरूफियात जिंदगी तुम्हारी जाती मुश्किल हल करना है? अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, ताकि मैं जनरल बुल्टोन से मदद लूं। किसी से भी चाहे मदद ले लो, किसी से भी। ये तुम्हारा केस मेरी इज्जत और आबरू को हवा दे रहा है। मेरी जो समझ में आया मैंने किया। मैंने खुद जज से टेलीफोन पर बात की है तुम्हारे लिए। कमांडर जवान से भी कहा कि वजीर अदालत से राब्ता करे और फौरी मुझे खबर करे। उस जंदगी को भेजा कि उसके वकील से बात कर ले। और क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? ये खत सिर्फ एक कागज है, तुम्हें सिर्फ इसके बारे में इत्तला दी जा रही है। गलत मुझे कहां से मालूम है बताओ, और तुम्हारा ये कहना है कि मुझे अच्छी तरह मालूम है। फिर से पहली बात पर आ गए। उस बेवकूफ सौराब ने तुमको देखा है विला में जाते हुए। उसकी आंखों से मैं बिल्कुल नहीं देखता। वो मर्जिया है, उसकी बीवी। देखो मेरी बात सुनो, तुम थोड़ी देर के बाद अदालत के लिए चले जाना। तुम तो कह रहे थे कि अदालत ना जाओ, कोई जरूरी नहीं है। मैंने कंपनी के वकील से बात की है, कह रहा है कि हाँ ये बेहतर है कि तुम थोड़ा मेडिकल इंस्पेक्टर के पास चले जाओ। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर मैं वहां पर चला जाऊं, यानी ये मस्खरेबाजी ठीक है? क्या कहते हो, कोई फायदा है? देखो नुर्स, तुम मेरी बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूं तुमसे। जोश में मत आओ। ये ईरान है। जो कानून लिखा गया है वो जारी करने के लिए नहीं है। वो कानून जारी होगा जो भी लिखा गया है। अगर एक केस खुल गया तो वो अपने हिसाब से चलता है जब तक मुखालिफ राजी ना हो जाए। बस तहकीकात जरूरी है ताकि वो बेवकूफ मेडिकल इंस्पेक्टर अपनी फाइल में कुछ लिख सके और अपने काम से चला जाए। खत्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या? यानी तमाम हो जाए, यानी फिनिश। जनता की कह रहा है अगर तुम आधा घंटा अदालत चले जाओ तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। वो मेडिकल इंस्पेक्टर चाहता है तुमको देख ले बस। ये बताओ कि जंदकी कितना इत्मीनान रखता है? 100%। उसके वकील से भी बात करके आया हूं। एक बात और है जिसके लिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। अब और क्या कर दिया है? नहीं, कुछ नहीं। एक लड़का अमेरिका से आया है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? दरअसल घर बार, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़कर आया है वो। तो क्या अदालत उनका इख्तलाफ दूर करे? नहीं, उसकी बीवी उसके साथ रहना नहीं चाहती। इंसान ठीक नहीं है, पागलपन करता है, बस बीवी को मारता है। दरअसल इसकी बीवी किसी और के साथ चली गई थी और जब उसे पता चला तो आपस के इख्तिलाफात इतने ज्यादा बढ़ गए कि अलग होना पड़ा। अच्छा, तो इस बात से मेरा क्या ताल्लुक? दरअसल उसका बड़ा भाई सोन में है। कह रहा है कि इससे पहले कि कोई और मुसीबत उसके सर पर आए, अमेरिका से बाहर चला जाए ताकि कोई परेशानी ना हो। अभी 2-3 दिन से यहीं रह रहा है, किसी गार्ड के साथ। सिफारती गार्ड के साथ? फिर मैं चाहता हूं कि कोई काम दे दो उसे ताकि वो 2-3 हजार रुपए आराम से कमा सके। अब और कोई बात शुरू मत कर देना। मेरे पास बहुत से कारीगर हैं और बहुत सारा काम है, उनको छोड़ दूं इस हाल में? नहीं 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 नहीं, वो एक बहुत जबरदस्त बंदा है। वियतनाम का मशहूर निशानेबाज है, एक फर्स्ट क्लास निशानेबाज। क्या तुमको कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए? क्यों नहीं, शायद हमें जरूरत पड़े। जान दे देगा अपनी जगह की हिफाजत के लिए। मुझे लगता है गार्ड तो कम रहेगा, अगर जनरल के पास भेज दें तो। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि किसी जगह की हिफाजत और निगहबानी के लिए। तुम अभी तक मेरा मजाक नहीं समझ सके। वाकई तुम मजाक कर रहे थे। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो कुछ दिनों पहले ही वियतनाम से आजाद हो। तुम जानते हो कि इस दौर में कोई भी किसी का नहीं है। नहीं, मैं नहीं चाहता कि कुछ और अमरीकियों के साथ मिलकर अपने लिए मुसीबत बनाऊं। चाहते हो एक और को शामिल कर? नहीं, जरूरी नहीं कि कल ही तुम उसको भर्ती कर लो, सिर्फ उसके लिए कुछ सोचने के लिए कह रहा हूं। और हाँ, बताओ कि वो कौन सी शराइत हैं ताकि मैं उन पर दस्तखत कर दूं। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या हो गया दोस्त? मैं चाहता हूं चला जाऊं। तुम मेरी मदद कर सकते हो? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यही अपने दोस्त निशानेबाज से कहो कि मुझे मार दे। मगर क्यों?